Okay, it's again a very good morning. Now see, the very first question of 13.5. The question says that a matchbox measures 4 centimeter, 2.5 centimeter and 1.5 centimeter. Whenever the numbers are written in the form of product, you can say that these are the dimension of the box LBH. Okay, so length, breadth and height are given. Clear? Clear? Length, breadth and height are given. Now, what will be the volume of a packet containing 12 such boxes? It means you require to find the volume of the packet that contain 12 such boxes, not one boxes. Okay, so according to question, volume of the packet, volume of the required packet will be 12 into volume of 12 match. into LBH. Correct, correct. 12 into volume of the matchbox. And now here 12 सर into, इसका आंसर आया है 180 सेंटीमीटर क्यूब. good, good, good. 12 into L is 4, B is 10.5, 2.5 and 1.5. So if you multiply all the numbers together, 10 into 10, 100 and 25 into 4, 100, cancel out. 12 into 15 is 180 centimeter cube. This is the first question. We have done it. Now, coming to the question number 3 or 4, tell me which question you want to solve. 3 or 4? Tell me. Anyone? Okay. Third question. A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. Its length and breadth is given, and it can hold 380 cubic meter of liquid. Means volume is also given, and we have to find the height. Do you know what is the formula to find volume? सर LBH. Correct. LBH. Volume is equal to LBH. Here H is not known. We have to find H. So H will be volume divided by L into B. Sir, give us only 2 minutes. Okay, just do it. Do it, I am giving you. I allow you to solve yourself. Use the given formula what I have given. What is the answer? Sir, the answer is 4.75 meter. 4.75. Okay. Any other student can confirm the answer? Please confirm. C. Height is equal to volume, means given volume is 380 divided by 10 into 8. 0 0 cancel out. 2 4 ja 2 19 ja. So 4 4 ja 16. 4.75 is the right answer. This is the correct answer. Sivang says. Sivang. Correct. Yes, sir. Now go for question number 6. How will you do? Who will explain? Let me see how many of you are here and ready to answer me. Priya, can you solve this question? Nishant,
Nikhil, anybody? Sonam, can you solve it? Sonali is not present. Oh, this is section B now. But a student of section C are here. बोलिए बेटा, how will you solve question number 6? And who will explain that what we have to find in this given question? Exercise 13.5, question number 6. The question is, I am explaining. See, एक्सक्यूज मी सर बोलिए सर बेटा. यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 4000 पॉपुलेशन है और 150 लीटर पर डे चाहिए एक आदमी को तो Yes. पहले तो 4000 को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है वो निकाल के उससे डिवाइड कर देंगे. Absolutely good. Right. Question is that a village having a population of 4,000 and 150 liter of water is required one person. Okay. So total water required by 4,000 person will be 4,000 into 150. This will be the required water. Okay. And C, tank. A tank contain how many water? How much water? So if you find the volume will be in meter cube. Okay. Volume of the tank will be 20 into 15. It is 300 into 16, 1800 meter cube. Clear? Clear है बेटा? 20 into 15 is 300 and 1800 meter cube. 1800 meter cube means how many liter? 1000 liter. It means 185 times 0. This much liter one tanker contain. Understand? And one day how much quantity of water is required? 4000 into 150. It means 60,000. 60,000 liter is required. So how many days this village will survive by using this tank? So the total quantity of water will be divided by 60,000. We get the answer. 40 will cancel out and dividing 180 सर by 6 6. लाख लीटर होगा 30 days. Tell me what you want to say. सर हाँ बोलिए. सर वो 4000 इंटू 150 इज इक्वल टू 6 लाख लीटर होगा. कैसे 600 हो सकता है बिल्कुल. देखते हैं हम. देखिए 30, 10, 40 and one more 0, 50 is there. Correct. So if you divide it, only 3 days will be answer. Clear है? शिवांग clear है बेटा? यस So it is only 3 days. Means this tank will go for 3 days only. समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि टोटल देयर आर 4000 persons are there and everybody require 150 liter in their daily household activity at an average of 150 liter per head. Now the total required water is 6 lakhs liter per day. There is a tank whose dimension is given 20 by 15 into 16, 6. So this is 180 meter cube and we know that 1 meter cube means 1000 liter. So we multiply the volume in meter cube to liter and now here 1800 meter cube becomes 180, which means 18 lakhs liter. So if a village requires 6 lakhs liter per day and container contain 18 lakhs liter, so only it will go for 3 days. So that is the answer. Question number 6. Now question number 8.
solve the question. Question number 8 for you. If you have any doubt, you can ask. Okay? Not to stop. I am here for you all. So do not think that sir will not answer. Sir will have to answer everything, whatever the question you are asking. So not to worry and ask whatever the, suppose in some previous exercises you have some doubt. I am ready to answer all those questions also. Okay. So please ask question. I have asked question number 8, but you may ask any question. Go on asking question, beta. If 8 is being done by you, then that is good. But if you have any doubt in the previous exercise also, you can ask. Okay, see. What is the question? Demand. See. सर यहाँ पे सॉलिड क्यूब है 12 सेंटीमीटर का Good. और उसको अगर डिवाइड किया जाता है 8 क्यूब्स में इक्वल वॉल्यूम से It तो means साइड it. ऑफ द न्यू क्यूब देखो क्या होगा? solid cube of 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर मीन्स 12 लंबा है, 12 चौड़ा है और 12 ऊंचा भी है. ठीक है ना, मतलब साइड इज 12 सेंटीमीटर. इट्स अ 3D शेप. Okay, so 12, 12, 12. The total volume will be 1728 centimeter cube. Because if you find the cube of 12, you will get 1728 centimeter cube. Now, we have cut into 8 cube of equal volume. Okay, so the very first point is, according to question, volume of cube is divided by 8. What is the result? The result will be 12 into 12 into 12 by 8. So if you divide it by 2, 4, here it is 6. It is also 6, 2 will come here and this is also 6. So here it is 6 6 is वॉल्यूम जो 36. है वो आया है 216 सेंटीमीटर क्यूब और साइड है 6 सेंटीमीटर. And this solid volume, this is also a cube. Cube means the volume of cube is side cube. So 216 is the number that is the result of product of a number 3 times, because this is also a volume. So what did you find here? 6 into 6 into 6. So you have got the side of the given cube is 6 centimeter cube. So you can say this cube has a side 6 centimeter. Clear? And now what to find? The ratio between their surface area. Very good. Surface area of the two given cube. Now see, what is the formula to find the surface area? Please. 6 square. Correct. Surface area of 1 by surface area of 2. First we are taking the cube of 12 centimeter. So 6 into side square divided by 6 into 6 square, because capital side was 12 centimeter and small side what we have got, this is of 6 centimeter. And surface area, the formula to find सर surface 1:4 area is आया. 6 into side square. Now these two 6 4 will ratio cancel 1. out. 12 by 6 whole square. You can say 2 by 1 whole square or 4 is to 1. So the सर bigger 4:1 cube आया. had surface area 4 times the smaller cube. Surface area. Clear? जो बड़ा Yes, वाला sir. आपका जो क्यूब होगा उसका सरफेस एरिया 4 गुना होगा. ठीक है, क्योंकि इसका साइड 2 गुना है. हमेशा याद रखना, जब कभी भी हम एरिया के विषय में बात करते हैं तो वो लगभग स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, और जब कभी क्यूब वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो वो लगभग क्यूब टाइम्स होता है. ये याद रखना.
तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ एक हल्का सा रिकैप ले लो ऊपर से नीचे तक 13.5 के क्वेश्चन में, क्योंकि ये आपका होमवर्क होने वाला है। 9B के लिए भी सेम होमवर्क होगा, ये बना के रखना है कल आपको। जो भी क्वेश्चन अगर डाउट में आता है आप पूछ सकते हैं। बोलिए, देख लीजिए 1 से 9 तक, उसके बाद भी इजी है आपका ये। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो हमने फॉर्मूला याद कर रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। कोई बच्चा है यहाँ जिसको याद नहीं है बेटा? बोलो। निशांत, निखिल, दीपांशु, बसंत, आदित्य एंड 0735, क्या है बेटा आपका नाम? बोलिए बेटा। 735, क्या नाम है आपका? लेफ्ट द मीटिंग, कौन था ये बेटा? क्या नाम था इसका? कोई बताएगा मुझे? आदित्य राज, दीपांशु और एनीबडी? सर नेम नहीं पता उसका। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए बेटा पूछिए मुझसे, फिर से आप आ गए। नाम क्या है बेटा आपका? हर्ष। कोई बात नहीं है हर्ष। चलिए आगे आते हैं हम क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम आते हैं, अगर 13.5 के बाद 13.6 में आए तो कुछ ज्यादा नहीं है, बस हमें रिवाइज कर लेना है सिलेंडर के सारे फॉर्मूला को। हॉलो सिलेंडर नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ सिलेंडर। तो मुझे जरा आंसर करना आप लोग, जिससे मुझे विश्वास है कि आपको मैंने याद कराया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? जल्दी बोलिए। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर 2 पाई आर एच। वेरी गुड। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर Same. आर प्लस एच। 2 पाई आर into r plus 2 pi r into r plus h. सॉरी, इट No इज sir, ऑल्सो same. 2 पाई आर एच। कर्ड सरफेस 2 एरिया और पाई आर एच लेटरल होता है। सरफेस एरिया सेम होगा, क्योंकि ये सिलेंडर का, अगर आप देखो ध्यान से, तो Yes, sir. ये जो कर्ड सरफेस एरिया है, टॉप और बॉटम को हटा दो, तो यही है कर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। समझ गए? तो यही वाला पार्ट जो है आपका होगा। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? Sir, 2 pi r R into plus r H. 2 plus पाई आर h. इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसा होगा, क्योंकि ये हो गया तुम्हारा लेटरल, और एक ऊपर सर्कल है और एक नीचे सर्कल है, इसलिए 2 बार सर्कल का एरिया। लेकिन इसी फॉर्मूले को हमने क्या किया, इजी करने के लिए 2 पाई आर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया आर प्लस एच या एच प्लस आर। आप लोगों ने ये बताया, पर ये इसका रिजल्ट है, तो आप ये ध्यान रख लेना। ये टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? लेटरल या कर्ड प्लस सर्कल का एरिया। ठीक है? क्लियर है? तो अब जो है, यस सर। अब हम हॉलो सिलेंडर के बारे में अगर बात करें, तो हॉलो सिलेंडर में क्या होगा वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ, पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। वो हॉलो सिलेंडर होता है बाहर का वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एच दोनों में सेम होता है, लेकिन अगर इन दोनों में हमने पाई एच को कॉमन ले लिया, तो आपके पास आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैपिटल आर मीन्स एक्सटर्नल रेडियस, स्मॉल आर मीन्स इंटरनल रेडियाई। और अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, सो यू कैन राइट दिस फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। क्लियर है? ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ। यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोला जाए कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट सिलेंडर, तो हम केवल यही बोलेंगे, क्योंकि अंदर में जितना जगह पानी का या कोल्ड ड्रिंक का या जो जगह घेरेगा उसका वॉल्यूम पूछा जाएगा। मतलब अगर कैपेसिटी पूछ रहा हो इस क्वेश्चन में, तो हम लोग केवल इसके वैल्यू को लेंगे। और ये जो हमारा वैल्यू है वॉल्यूम के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये जो हमारा वैल्यू है, ये वैल्यू मेटल का वॉल्यूम, जिस मेटल से बनाया गया है,
वो वॉल्यूम के बारे में हम बात करेंगे, तो ये हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपेसिटी, कि हाउ मच लिक्विड, हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क वी कैन this body can contain, so only we require to find this pi small r square h, means internal radius, internal volume of the metal pipe। क्लियर है बेटा? बोलिए। यस सर। तो Yes, sir. चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 1 2 3 कौन सा क्वेश्चन करें बताइए आप, उसी को करते हैं। बोलिए, इट इज अप टू यू प्लीज। बोलिए बेटा, कौन सा क्वेश्चन करना है हमें? कोई है क्वेश्चन 13.56 का? आप बनाइए, फटाफट बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1, बनाइए बेटा। ऑल ऑफ यू कैन टेक अटेम्प्ट। Here the circumference of the base of the cylinder is given, means 2 pi r is given. Find the r by using this circumference. By dividing the circumference by 2 pi, you will get the radius, and height is also given, but the unit is centimeter. Remember that volume of 1 centimeter cube means 1 milliliter, whereas 1000 centimeter cube is equal to 1 liter. Okay, and 1 liter cube is equal to 1000 liter. So remember these units, conversion of units. Clear? Now the circumference of the base cylinder is given. Find the radius, and then after find the volume and change the centimeter cube into liter. So do it quickly. बनाइए बेटा। कौन कौन अटेम्प्ट ले रहा है पहले मैं देख लूं। शिवांग, आप ले रहे हैं अटेम्प्ट? यस सर, मेरा ऑलमोस्ट बन गया, बस उसको लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। गुड गुड। शिवम, युवराज? सर 34.65 लीटर। 34.65 लीटर, मतलब इट्स अ गुड नंबर। अच्छा आ गया। ये कंटेनर जो है, यस सर, 34.65 लीटर। मुझे तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर लग रहा है, तो एक बार मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ। ठीक है, ओके। देखिए सरकमफ्रेंस अगर 132 है, तो मतलब ये हो गया क्वेश्चन में C इज इक्वल टू 132। C होता है 2 इंटू पाई इंटू R इज इक्वल टू 132। 2 इंटू 22/7 इंटू R, दिस इज इक्वल टू 132। तो रेडियस का वैल्यू क्या होगा? 132 इंटू 7/2 इंटू 22। 22 से एक कट करेंगे हम 6 जामे, सर रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। हाँ, दिस इज अ गुड सिलेंडर। ये हो गया 21 का, और इसका हाइट हो गया तुम्हारा 25 का, तब तो जरूर आएगा। मतलब रेडियस हो गया आपका 21 एंड हाइट इज ऑफ 25। तो अब निकालते हैं हम वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर एच, 21 इंटू 21 इंटू 7 से कट किए 3 जामे, और 21 इंटू 3 इज 63, and 25 into 22 is 550. Okay, this is in centimeter cube. तो मतलब 34 का वैल्यू ऑलमोस्ट सही है, तो मतलब यू आर राइट। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे और 1000 से डिवाइड करोगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम
5 और 6 में 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कौन समझाएगा मुझे प्लीज बताइए। आप में से कोई भी बच्चा चाह सकता है, बोलिए। बसंत समझाओ तो बेटा। सर ये एक सिलेंडर का सर कॉस्ट दिया हुआ है, उसके इनर सरफेस का, इनर कर्व एरिया का कॉस्ट का पेंट 2200, जो 10 मीटर डीप है। बोल रहा है कि 2200 रुपया खर्चा होता है अगर एक सिलेंडर के अंदर वाले सरफेस को हम पेंट करते हैं, जिसका हाइट दिया हुआ है, मतलब सिलेंडर की गहराई दी हुई है 10 मीटर, रेडियस नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये तो पता है कि पेंट कर रहे हैं तो पूरे एरिया पे कर रहे हैं, और अंदर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH, यही होता है ना। कर्व सरफेस एरिया तो यही होता है ना। अच्छा, यस सर। एक बात तुम मुझे पहले ये बता दो कि अगर 20 रुपए के हिसाब से तुम पेन खरीद रहे हो तो 2200 रुपए में कितना पेन खरीदोगे? $110। करेक्ट। यानी कि अगर टोटल खर्च को डिवाइड कर दे रेट से तो हमें आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। यानी कर्व सरफेस एरिया के लिए डायरेक्ट लिखना है हमें टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेट, ओनली दिस। तो ये आ जाएगा क्या हमारा 2200 डिवाइडेड बाई 110, सॉरी रुपीज में नहीं होगा, 110 सर इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल जो है वो हो जाएगा मेरा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका, और रेडियस ऑफ द बेस होगा 1.75 सेंटीमीटर। सी, ये हो गया आपका 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा। अब बोल रहा है रेडियस ऑफ द बेस, तो अब इसको मैं यूज करता हूं यहां 2πRH इज इक्वल टू, अगर 110 है और हमें रेडियस निकालना है और हाइट इज गिवन दैट इज 10, तो चलिए हम यहाँ रेडियस निकालने के लिए आते हैं। तो रेडियस क्या, 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई मतलब 22 ऊपर में, और h क्या है हमारा, नीचे है h 10, 10 कटा, 11 से 2 जा 10। में कटा, तो ये हो गया 7/4 इज द रेडियस। 7/4 सेंटीमीटर क्या हो गया, रेडियस। 1.75। क्लियर। और अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, मींस वॉल्यूम ऑफ द वेसल, दैट इज πr² h 22/7 into radius is 7/4, so multiplying it twice because r square and h is 10, so 1 will cancel out, 2 2 ja 4 and 2 5 ja 10। क्लियर। तो ये आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो कैपेसिटी इन लीटर ऑल्सो। क्लियर, सही है बेटा। यस। तो ये हो जाएगा Yes, sir. आपका पूरा का पूरा वॉल्यूम। क्लियर। और याद रखना, जब भी कैपेसिटी के बारे में बात किया जाए तो वॉल्यूम को चेंज करना होगा लीटर मिलीलीटर में, याद रख लो ये चीज। तो मुझे कौन बताएगा कि 1 मिलीलीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब, बोलिए। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब, बोलिए बेटा।